LA14 ڈھیرکوٹ کے میرے خوبصورت اور غیور قبیلہ راجپوت قبیلے سے ہیں، میرے منپسند لوگ بھی ہیں، اور یہ اپنے کریکٹر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عظیم خاتون ہے۔ گزشتہ کچھ روز پہلے ہمارے چراغ منزل کی چیئرپرسن نسرین عزیز صاحبہ اس دنیا سے کوچ کر گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پر یہ خاتون چل رہی ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ایسی تنظیمیں چلانے کے لیے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈونرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کئی جگہوں پہ جا کے آپ کو کیمپ لگانے پڑتے ہیں، ڈور ٹو ڈور، اور جانا پڑتا ہے، لوگوں کو اس طرف کنونس کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہاں پر کچھ دیں گے تو یہ غریب مستحق لوگوں تک پہنچے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے کیسے ایفرٹ کی، کیسے اسٹرگل کی؟ اس کے لیے مطلب جو بھی میرے اپنے ریلیٹیو تھے، جو بھی لوگ تھے، جو بھی میرے پاس فرینڈز آتی رہی ہیں، جو بھی بندہ آتا رہا ہے، ہم نے مطلب ایک طرح سے اس کے آگے ہاتھ پھیلائی ہیں۔ تو مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، بلکہ لوگ مطلب بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ مطلب باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خود وہ کر رہی ہیں، اپنا نظام چلا رہی ہیں، یہ وہ۔ تو پرسنلی ایسا مطلب یہ ہے کہ مجھے پرسنلی احساس، انسانیت کا جو احساس ہے نا، وہ اسٹارٹ سے میرے اس میں تھا، تو اس وجہ سے میں یہ مطلب مجھے مانگتے ہوئے کسی سے شرم نہیں آئی کبھی بھی۔ باتیں بھی سنی ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن مجھے کبھی کسی سے نہ مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی لوگوں کے لیے، کیونکہ میں اپنے لیے تو کر نہیں رہی تھی، دوسروں کے لیے ہی کر رہی ہے۔ اچھا، میری محنت میری منزل جو ہے، ابھی آپ نے کتنی خواتین آپ کے اس ادارے میں کام سیکھ رہی ہیں؟ ابھی آپ ڈرائیونگ بھی، ان کو ڈرائیونگ کا ہنر بھی آپ دے رہی ہیں، تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ ابھی تو 3 میرے خیال میں ہم مطلب اسٹوڈنٹس ہماری کر چکی ہیں، مکمل ہو گیا ان کا، اور مطلب ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ڈرائیونگ کا، 3 ماہ سے ہم نے مطلب سٹارٹ لیا ہوا ہے، اور 3 جو خواتین ہیں ہماری وہ بالکل مکمل ڈرائیونگ کر چکی ہیں، سیکھ چکی ہیں، اور سیکنڈ وہ آ رہی ہیں۔ مطلب اس ڈرائیونگ کا ہم نے اس لیے سٹارٹ لیا تھا کہ مطلب خواتین کو جب سامان وغیرہ لانے لے جانا، جب وہ پرسنل بزنس کرتی ہیں تو ان کو پرابلم ہوتی ہے، مطلب سامان ایک جگہ سے اٹھانا دوسری جگہ وہ کرنا، ظاہر ہے ان کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے مطلب مختلف جگہوں پہ۔ جیسے ہم لوگ کپڑے کا کر رہے ہیں تو ہم ظاہر جب بازار سے اٹھاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، وہ اتنا تو ہمارا کرایوں پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ کہ آپ کی کیا انکم کیا ہے؟ میری انکم، ہمارا تو ایک تو کپڑے کا کام ہے، کپڑا ہم منگواتے ہیں کراچی سے ابھی، اور ادھر سے ہم راجہ بازار سے بھی پرچیز کرتے ہیں، تو کچھ انکم اس کی ہے، اور سیکنڈ بیٹا بھی آرمی میں ہے، ہسبینڈ بھی آرمی سے ہیں، تو اس لیے پھر وہ بھی ہے، پھر ہم لوگ ممبران سے بھی وہ کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، پھر یعنی کہ محلے میں جو میری اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں سے فارغ ہو کے جاتی ہیں، مطلب جن کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی سپورٹ کر دیتی ہیں۔ اچھا، LA14 میں ابھی سب سے زیادہ آپ کو کیا LA14 کے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ کون سپورٹ کرتا ہے آپ؟ ایک تو میجر ممتاز صاحب کر رہے ہیں، اور سیکنڈ ساجد عباسی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت گریٹ، میرا چھوٹا بھائی، مطلب جس طرح آپ کہیں، تو جب بھی میں نے ان کو کچھ کہا تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ماشاءاللہ۔ تو اچھا، عباسی صاحب، ساجد اقبال عباسی صاحب، آپ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ میرے جو کام ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ نہ کریں۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کے کاموں کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہے، اور یہاں بھی آپ کی خدمات ہیں، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، یہ تو انہوں نے کہا ہے، تو یقین سے میں کہتا رہتا ہوں میم کہ اگر LA14 میں ایک اور ساجد اقبال عباسی پیدا ہو جائے تو تقدیر بدل جائے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساجد بھائی جیسا اگر ایک اور آ جائے، اور پھر ترقی جو ہے تو میں کہتی ہوں کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ ترقی ہو۔ میں انہی کے بیس پہ نا، میں آج ایک چیز بھی ظاہر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں انہی کو مطلب سمجھ کے، تو آپ کو پتہ جب ہم لوگ ملے تھے کہاں پہ، وہ جب ظفر عباسی صاحب کے، تو غلطی سے میں ان کی طرف چلی گئی، یعنی انہوں نے بلایا تھا کہ آپ آئیں میٹنگ کریں ہمارے ساتھ، تو وہ میٹنگ کے لیے ہم لوگ گئے، تو انہوں نے پہلے گھر بلایا، ہم گھر گئے، پھر انہوں نے کہا ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، بلکہ ہم لوگ تھوڑی دیر وہاں پہ، پہلے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، پھر کہتے ہیں جی آپ دھیرکوٹ آفس میں آئے، تو وہاں پہ میٹنگ ہوگی،
हमारा मकसद सिर्फ ये होता है, देखें हम जो सोशल लोग होते हैं ना, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। हमने हर बंदे से वो करना होता है, मांगना होता है। हमारा तो मांगना ही काम है ना, तभी हम मांगेंगे तो लोगों से मतलब आगे हम लोगों को वो कर सकेंगे ना। क्योंकि हमारा ज़ाती कोई हमारी इतनी इनकम नहीं होती कि हम अपनी जेबों से जाए तो लोगों को वो कर सकें। तो ज़फ़र साहब ने हमें मुझे दिरकोट बुलाया। उन्होंने कहा कि आप आएँ। थोड़ी देर बाद जब हम दिरकोट में पहुँचे तो थोड़ी देर बाद जी आज कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो पहली बात है मुझे तो एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उनने लोगों में हम 2 लेडीज़ इस्लामाबाद से गई हुई थी। तो अभी हमारी मतलब उस तरह मीटिंग नहीं हुई थी, कोई वो नहीं हुआ था कि, बल्कि उन्होंने एक चीज़ ये कही थी कि हाँ मैं आप लोगों को मैंने उनको ये कहा था हम आपको तब सपोर्ट करेंगे जब आप हमें वो सपोर्ट करें, हमारे लोगों को सपोर्ट करेंगे। मतलब सीधा आप कहना चाहती हैं कि वो वोट मांग रहे थे? जी जी जी, उन्होंने कहा कि आप हमें तावन करें, आप हमारा साथ दें। तो लेकिन जो बाद में उन्होंने फिर जो मतलब अच्छा, मैं उनको मतलब ये नहीं कहूँगी क्योंकि देखें सियासत हर बंदा करता है, लेकिन हम सोशल लोगों को ख़राब करने का उनका कोई वो नहीं बनता था कि। अच्छा अब्बासी साहब, ये वैसे एक सवाल है कि ये लोग सोशल सेक्टर के लोग हैं और ये सवालिया निशान है। हम मौजू से भटक रहे हैं, हमें क्या लेना देना इनसे, लेकिन मेरी मेहनत मेरी मंजिल है, सॉरी। इसके लिए अभी आपका लाएअमल क्या है, क्या करना चाह रही हैं आप? आगे तो करने को बहुत सारा कुछ है। फिलहाल तो हम लोग एक तरह से हम लोग खुद क्राइसिस में ही हैं, क्योंकि हम लोग उस तरह लोगों को प्रमोट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास फ़ंड नहीं है। देखें अगर हमारे पास फ़ंड होता तो इस वक्त हमें ज़रूरत है, जो आपको पता है माशरा हमारा ख़राब होता जा रहा है। कुछ लोगों के मैंने राशन जो उनको मैं प्रोवाइड कर रही थी ना, जब उनके घरों में गई मैंने विज़िट किया, वहाँ देखा कि यंग लड़के वो जो है ना मोबाइल का मतलब सिस्टम उस पे वो बिज़ी हैं, और वो उनको हम कहते भी हैं कि आप मतलब रेडियो शड़ियाँ लगा के हम आपको देते हैं, आप काम करें, तो वो उस तरफ नहीं जा रहे। उसके लिए मैं ये करना चाह रही थी कि मतलब ये जो कैंपिंग का, यानी उनकी जो मतलब मेंटलिटी को थोड़ा चेंज करने के लिए कैंपिंग की ज़रूरत है। और कैंपिंग के लिए मसला ये है कि हमारे पास फंड नहीं है कि हम कैंपिंग करें। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले इनके मकासद बता देता हूँ। मेरी मेहनत मेरी मंजिल जो काम कर रही है यहाँ की वेलफेयर, और उसके मकसद में बता देता हूँ कि बेसारा ख़वातीन को हुनरमंद बनाना, ख़वातीन को हुनरमंद के बाद रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना, ख़वातीन को डिप्लोमा कोर्स के बाद 3 माह की बिज़नेस ट्रेनिंग देना ताकि वो अपने कारोबार को अच्छे तरीके से समझ सके। तरबियत शुदा ख़वातीन को इनके अपने ही इलाके में पार्लर, बुटीक, कारखाने और ट्रेनिंग सेंटर इदारे के ज़ेरे निगरानी बना के देना ताकि वो अपना रोज़गार बेहतर तरीके से हासिल कर सके। 3 ख़वातीन के ग्रुप शक्ल में इदारे की तरफ से 3 लाख की माली इमदाद और बिज़नेस ट्रेनिंग के ज़रिए इदारे कायम करना, जिनकी इनकम से एक हिस्सा इदारे की सपोर्ट के लिए वक्फ होगा। ये इनके मकासद हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो ना होने के बराबर है, और ये कश्मीर से रिलेटेड लोग जो हैं उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट करते हैं। ये एक टीम वर्क खातून है, और जैसा कि इन्होंने ख़ुद ही अर्ज़ किया कि कश्मीर से ही इन्होंने इस जद्दोजहद का आगाज़ किया था कि लोगों की किस तरह से खिदमत की जाए। हमारे फाज़िलिया ट्रस्ट के CEO राजा मुमताज़ साहब इनकी सपोर्ट करते हैं। LA14 ढीरकोट की रौनक साजिद इकबाल अब्बासी साहब इनकी सपोर्ट करते हैं। इस तरह बहुत से लोग और सपोर्ट कर सकते हैं इनको, इनका काम आके देख सकते हैं, इनका इदारा देख सकते हैं। पीछे मैंने आपको फुटेज दिखाया जो इनके इदारे के हैं। ख़वातीन हुनरमंद बन रही हैं, उनको ड्राइविंग कोर्स करवाया जा रहा है, और सबसे बढ़कर ख़वातीन की वो तरबियत की जा रही है जो वहाँ किसी तरह से हो नहीं पा रही है। और मैं समझता हूँ कि इस गए गुजरे दौर में मर्द और ख़वातीन दोनों बराबर हैं और होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में कुछ लोग समझते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे का साथ दे के ही
ज़िंदगी का जो इनका पहिया है वो आगे बढ़ सकता है और अच्छे से बढ़ सकता है। और जितनी ख़वातीन हुनरमंद होंगी, चूँकि ख़वातीन मैं समझता हूँ कि मर्दों से ज़्यादा मेहनती होती हैं, घरदारी के हवाले से, अपनी बच्चों की तरबियत तालीम के हवाले से वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करती हैं। तो हमें अपनी ख़वातीन को सपोर्ट करना है, उनको हुनरमंद बनाना है, उनको एजुकेशन में सपोर्ट करना है, उनके हर फील्ड में उनको सपोर्ट करना है, तब जाके हमारी सोसाइटी तरक्की करेगी। मैम मुझे ये बताइएगा कि अभी जो अल्ले 14 के लोग हैं, कश्मीर से रिलेटेड लोग जो हैं, ज़्यादातर आप उनके काम आती हैं, उनके नाम पैगाम क्या करें? उनके नाम यही पैगाम करूँगी कि जो आप के साथ देखें, आप लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी आप लोग अपने तौर पे भी सपोर्ट करें। मतलब जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाते, ठीक है। आप लोग उनकी कंडीशन देखें, आप लोग खुद यानी कि नज़र रखें दूसरों पे भी, यानी कि अपने से जो नीचे कोई नहीं होता। मतलब दिखने में तो हमारे सूट बूट ये वो सब वेल होता है लोगों का, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सफ़ेद पोश होते हैं, आप उनको सपोर्ट करें। ये असल बात होती है तरबियत की। यहाँ मेरे पास जो कुछ स्टूडेंट्स आई हैं, मैंने उनको मतलब दीन की तरफ वो किया, किससे, अपनी बोल चाल से, तरबियत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ नमाज की तरफ भी आई हैं, उन्होंने अपने बच्चों को भी मतलब बहुत अच्छा वो करना शुरू किया है। तो मैं समझती हूँ कि आगे अगर मुझे कहीं फ़ंड मिलता है, कोई डोनेशन मिलती है, तो तरबियत गाहें भी हम लोग। और सेकंड ये कि मैंने देखा हमारा कश्मीर फिर मतलब सही है, यहाँ पंजाब साइड पे इतनी ज़्यादा मतलब तरबियत की कमी है, इतनी ज़्यादा जहालियत है कि 100 साल अभी वो लोग पीछे हैं। तो मैं वहाँ पे भी करना चाह रही हूँ कि उनके लिए वहाँ पे तरबियती कैंप बनाए जाएँ। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन्होंने तरबियत की एक बात की है। तो मुझे बात यूमिन एयरपोर्ट की तकरीब में मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब ने ख़ताब करते हुए, एक बड़े मजमे से ख़ताब करते हुए उन्हें कहा था कि तरबियत की एक उम्र होती है, जबकि तालीम की कोई उम्र नहीं होती है। तरबियत का एक वक्त होता है, तो उस वक़्त बच्चों को तरबियत दी जाए तो वो उनकी लाइफ स्टाइल में जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आप ये इन्होंने बड़ी गहरी बात की है कि ये तरबियत गाहें खोलना चाहती हैं, तो इनको सपोर्ट कीजिए। स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर नज़र आ रहा है आपको, इस नंबर से आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं, इनके कामकाज को देख सकते हैं। ये मैं समझता हूँ इस गए गुज़रे दौर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं और जनरेशन को बहुत फ़ायदा दे रही हैं। और करबला होगा।